मतलब अगर हाइट आपकी 160 है और आपका मैक्सिमम वेट 60 केजी है, अगर उसको आइडियल वेट लेते हैं, उससे 10% ज्यादा हो तो यू बिकम ओवरवेट, whereas उससे 20% ज्यादा हो तो you become obese. So that is how you judge anybody coming to you is overweight or obese. So 10% more is overweight, 20% more would be obese. Okay. So ये जो फॉरेन मतलब हमारे इंडिया कंट्री का जो कहते हैं उसको कट ऑफ है, that is a BMI body mass index above 25. जबकि आप यूएस में देखेंगे आप बीएमआई अबव 30 इज कंसिडर्ड एज ओबेसिटी। तो हमारे यहाँ 23 से लेके 24.9 तक कोई ओवरवेट होता है, अगर उसका बीएमआई 23 से 24.9 हो तो दैट पर्सन इज नोन एज ओवरवेट, whereas if it is above 25 it is known as obesity. तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, because if you Google search you will find 30. So that's not in context of our country. Our country, we go above 25 BMI, we take it as obesity. Okay. So now coming to how are we going to, reduce the weight if somebody with, who's overweight or obesity is coming to us. What are the strategies? So I think all of you know, the first and foremost thing, what I see people coming to me, mostly those who are obese, chronically obese, they somewhere have become accustomed and they are used to that carrying that extra weight. So first and foremost you have to educate your client or customer or patient to why that it's important to lose weight. आप अगर एक ओबीस जो बहुत सालों से वेट ज्यादा लेके घूम रहे हैं, ठीक है, उनसे आप हमेशा एक कॉस्मेटिक रीजन के लिए बोलेंगे कि आप वेट लूज करो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि इस पे साइकोलॉजी बहुत वर्क करती है, और वो लोग यूज टू हो चुके हैं, काफी लोग अपना एक्स्ट्रा वेट लेके, so for them, for some people it's psychological burden, for some person it's like they are used to. आप अगर उन्हें कहेंगे आपका वेट ज्यादा लगता है तो वो कहेंगे हमारी आदत हो चुकी है. So what you have to actually educate them is, उनको दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में एजुकेट करिए कि भाई अगर आपका वेट ज्यादा है, you stand more chances of having hypertension, you stand more chances of having heart attack, you stand more chances of having diabetes, pre-diabetes, तब वो कहीं जाके आपकी बात को सुनेंगे. I mean, I always tell cosmetic reason को अलग कर दीजिए, looks को अलग कर दीजिए. It's about your health. Then they are going to listen to you. Otherwise, it's very important to counsel your client very well if you're starting with weight loss. Secondly, I think all of you know, सीधी सी बात है, the energy in is not equal to energy out in obesity. It means हम कहीं ना कहीं ज्यादा ले रहे हैं and we are not burning it out. Okay, it may be mainly because of physical activity. It may be because lot of calories in the diet, and it may be because of lack of physical activity and genetics. क्योंकि genetically अगर आपको problem है, your genes are slow in metabolism, then whatever food you take, it gets accumulated and there is a problem in burning it out, in easy words. So that can be a genetic reason also. So you can read this, energy balance is like a scale, and when calories consumed are greater than calories used, weight gain is the result. All right. So that's about obesity. Now coming to the weight loss programs. Okay. So हम कैसे weight loss करते हैं? You all know that it is by healthy eating plan. Healthy eating plan में हम कैलोरी को कम करते हैं और healthy eating देते हैं. There is no, I was telling that day also that people are practicing mango diet, egg diet. No diet can work. कई बार आपका एक दिन में 1.5 kg, लोगों का 1 kg कम हो जाएगा. But then that is not going to sustain. So basically we in a normal eating plan हम उसकी कैलोरी को reduce कर देते हैं और उसको healthy, basically healthy balance
बैलेंस डाइट से वो करते हैं, मतलब बैलेंस डाइट देते हैं। अलॉन्ग विद दैट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि फिजिकल एक्टिविटी साथ में चाहिए। हेल्दी बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेनली पीपल गेन वेट because they don't have healthy behavior, so you need to change on their psychology also by counseling. It needs a lot of counseling. एक चार्ट देने से कुछ नहीं होगा. And then how the weight goes, I'll tell you in our Indian context. It should be 500 grams to 1 kg maximum per week. इससे ज्यादा अगर आप वेट लॉस दे रहे हैं तो ना ही वो सस्टेन होगा, ना ही वो मेडिकली करेक्ट है. Okay. All right. Now, see, weight loss plan is basically divided into phases. Okay, उसके phase होते हैं. Initial phase होता है, फिर middle में phase होता है. क्योंकि जिसका 20 kg 15 kg ज्यादा है, वो कभी एक महीने में weight loss नहीं कर सकते हैं. तो the weight loss diet is quite a long term diet. Okay. Then coming to the initial goal, it means पहले first हम लोग क्या करते हैं? First हम लोग just a second. Yeah, first the initial goal is that we have to reduce the weight by approximately 10% from baseline. ठीक है, baseline से हमें 10% कम करना है. Okay, उसके बाद ही हम आगे कुछ सोचते हैं. So anyone can explain me, if I am supposed, if a lady comes with 60 kgs, how much target should you make to reduce the weight initially? Around 6 kgs. Yeah, excellent. So first, the baseline would be, just work on that 10%. Just work on that 10%, and please, better don't promise anything like 2 months में कर देंगे, 1 month में कर देंगे. Everybody's body metabolism is different. You can just tell them that medically 500 grams to 1 kg per week. That is what we can attempt, but there is no surety to it. Okay, so the reasonable. Madam, sorry, पर अभी क्या बोले आपने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. वो मैक्सिमम 10% और 6 kg वो क्या था? देखिए, पहले when a patient is coming to you, your major approach should be reduction of 10% of weight from the baseline weight. आप उसका 10% weight कम करेंगे. Is that clear? So if somebody who's like 60 kgs comes to you, so you can promise that person that I will make you lose minimum 6 kg over 6 months. Okay, that is how we go in nutrition therapy. I don't know आप लोग क्या practice करते हैं, आप लोग कितना weight loss कराते हैं, but this is how we do it from diet. Okay, so 10% reduction हो जाता है over a period of 6 months. इससे ज़्यादा भी हो सकता है, but इतना minimum एक अच्छे weight loss plan में इतना तो होना ही चाहिए. Now I hope that's clear to you. Okay. Yes, then thank you. After he reaches his ideal weight, then we have to keep that person on a weight maintenance program. Why I'm telling you all this? Because कहीं भी आप commercially practice करते हैं तो ऐसे ही program आगे बढ़ता है. So we package, we book them in a initial weight loss package. Then there is a एक point पे जाके उनका weight stuck हो जाता है. Then that is another period. वो middle का period होता है. पहले तो सब weight lose कर देते हैं. The problem starts after losing the 10%. Okay. And then you have to put, once they reach their ideal body weight, you have to put them on maintenance diet. Why maintenance? Because all of these people bounce back. They again gain weight if they are not put on a weight maintenance program. So आप VLCC जाओ या आप तलवरकर जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप देखोगे लोग weight maintenance program में भी आते हैं और weight lose करने के लिए भी initial consultations के लिए आते हैं. And that is how you can also plan your program. So after 6 months of weight loss, the individual should be assessed. Okay. So 6 महीने बाद आप उसको assess कर लीजिए. अगर he has reached the ideal weight,
So you have to put that person on a maintenance diet. Okay, so that's very important. Then if further weight loss is desired, then again you have to attempt to reduce the weight. क्योंकि क्या होता है, like I told you, the problem starts only in the middle phase, in the second phase. शुरू में आप किसी भी इंसान को वेट लॉस डाइट पे डालोगे तो 5-6 kg आराम से कम हो जाते हैं. The problem starts after that 7 का figure. So how do you calculate? Basically, you have to put them on a calorie deficit diet of nearly 500 kilocalorie per day. मतलब आप RDA देख लीजिए. Have you all seen the RDAs? No, ma'am. I had sent you the notes with the RDA table. Okay. So you all see the RDAs and you deduct 500 kilocalorie per day from that. That can be done with exercise or without exercise. Best is combination of diet and exercise. But some people say we cannot exercise, उनका ligament rupture है या वो exercise कर ही नहीं पाते हैं, तो आप उनको सिर्फ डाइट से 500 किलो कैलोरी, तब वो बहुत लो कैलोरी डेफिसिट हो जाती है. अदरवाइज व्हाट यू डू, लाइक यू हैव टू डिडक्ट 500 किलो कैलोरी, तो आप क्या करेंगे, 250 किलो कैलोरी उनका खाना कम कर देंगे और 250 कैलोरी उनको कोई एक्सरसाइज दे देंगे जिससे उनका वेट लॉस या कैलोरी बर्न हो जाए. So generally we should start with 500 kilocalorie per day. In the sense आप 500 कैलोरी नहीं देंगे, आप उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट से 500 किलो कैलोरी माइनस कर देंगे. ओके, तो या आप वो कॉम्बिनेशन से करेंगे, इट मीन्स आप थोड़ा 250 डाइट्स कम कर देंगे, 250 किलो कैलोरी का एक्सरसाइज दे देंगे, और या आप सिर्फ डाइट से या सिर्फ एक्सरसाइज से, सिर्फ एक्सरसाइज से तो नहीं होगा, इट हैज टू बी विद डाइट or with diet plus exercise. So how can you just I'm giving example, 500 kilocalorie कैसे कम कर सकते हैं? A person who has never done any exercise, tell them to start with walk for 30 minutes. इससे आपका 250 किलो कैलोरी होता है. तो it's very easy to calculate. अगर किसी को आप 1 घंटे वॉक बोल रहे हैं, 30 minutes morning, 30 minutes night, so it becomes 250 calories. Similarly, swimming, similarly bicycling for cycling for 30 minutes, you burn 250 calories. Gardening 1 hour, you burn 250 calories. और देखिए डाइट पे कितने छोटे छोटे चेंजेस करने से 250 कैलोरी बर्न होते हैं. लीव आउट अ डेजर्ट, इसका मतलब अगर वो खाने के बाद किसी भी एक मील में मिठाई खाते हैं, वो आप काट दीजिए. अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो आप उनको बोलिए सॉफ्ट ड्रिंक लेना छोड़ दे. इसकी जगह सबसे कॉमनली, सब तो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेते हैं, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है चाय. चाय लेना तो यू डोंट हैव टू से नो. चाय में चीनी, so every time they take tea they take lot of sugar along with it. So आप चाय में चीनी बंद कर देंगे. You can tell them to reduce the portion size. Portion size मतलब अगर वो से 1.5 कटोरी या 2 कटोरी उपमा खाते हैं, you just reduce it to 1 katori at the initial. So this is how you generally go ahead with planning a diet. देखिए जो लेटेस्ट प्रैक्टिस है आज की डेट पे, पहले क्या होता था, एन ओबीस पर्सन यूज्ड टू कम टू यू, आप एक गो में पूरा डाइट प्लान उठा के दे देते थे. दैट इज अ कंपोजिट डाइट प्लान. आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा, सिंस वी आर टोटली टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस, आवर एम इज कि आप प्रैक्टिस में जब जाएं तो आपको आना चाहिए. So if you see in practice, you have seen clients are booked for sessions. So why are they booked for sessions? Because अगर एक इंसान को आप बहुत सारी चीजें एक बार में बोलें तो वो नहीं करेंगे या वो कर नहीं पाएंगे. So that is why we always go session wise, कि पहले सेशन में मैं सिर्फ 250 कैलोरी कम करती हूँ, तो 250 कैलोरी का मैं एक्सरसाइज देती हूँ, 250 कैलोरी की मैं छोटे छोटे चेंजेस बोलती हूँ. ओके, आप एक साथ सब बोल देंगे तो वो नहीं करेगा. Just tell them to stop tea and sugar, coffee, reduce the portion size. इसका मतलब जो भी खाते हैं उससे कम प्लेट, कम कटोरीज में यूज करें. So this is how you have to plan. मिठाइयाँ कम कर दें, पोस्ट मील लोग खाते हैं, कई लोग ब्रेकफास्ट के साथ दूध पीते हैं. Tell them to remove those things. तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम कैलोरी डेफिसिट पे डालते हैं. So what would you emphasize on?
ओके मैं आज आपको गाइडलाइन बोल रही हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं बोल रही. पहले आप समझ लीजिए कि आपको खाने में देना क्या है, देन ओनली यू कैन प्लान. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि एक ओबीस इंसान जब आपके पास आए तो यू हैव टू एम्फसाइज कि आप खाने में फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा करके लीजिए. अगर वो दूध लेते हैं तो यू हैव टू टेल देम टू गो फॉर स्किम मिल्क. ओके, यू हैव टू टेल देम टू गो फॉर लो फैट पनीर, लो फैट कर्ड. जो जिनका जैसे 20-20 केजी कम है, ज्यादा है, तो यू हैव टू टेल देम टू गो फॉर एंड होल ग्रेन्स, यानी पॉलिश्ड ग्रेन्स को आपको बंद करना होगा. अदरवाइज देयर इज नो अदर वे कि आप कुछ मैजिक नहीं कर सकते एक डाइट प्लान पे. बेसिकली आपको चीजों को मॉडिफाई करनी होती. सो यू हैव टू टेल देम टू स्टॉप हैविंग पॉलिश्ड राइस and make it whole grain. So I had given you the example of whole grain. Like you can tell them to have brown rice. Okay, you can tell them to have jowari roti. You can tell them to have ragi. You can tell them to have lot of salads. So this is how you have to tell them. Then increase lean meats, poultry, fish, bean, egg and nuts. तो बेसिकली आपको खाने में फिश को, बीन्स, एग, नट्स को, पोल्ट्री, ये सब लीन मीट है, इनको इंक्लूड करना है. कई मटन खाते हैं, दे आर इनटू रेड मीट, देन यू हैव टू स्टॉप द इंटेक ऑफ रेड मीट. इफ दे हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, यू हैव टू स्टॉप द yolk of egg. So this is how you have to include the proteins. अब आई फैट्स में आप ट्रांस फैट्स उनको मना करेंगे. Ma'am, one question. Yes. In a day, how many eggs we can take? Like somebody in diet, so how many eggs maximum? Somebody on diet really don't understand this meaning. What do you mean by this diet Yeah, thing? for normal, average, like normal people. See, normal person, only one whole egg is okay, and they can go for 2-3, egg whites. But if they are taking little bit of fat in the diet, 200 milligram of cholesterol is there in the yolk. So if they take 2, it means they have to exercise more, because that makes 400 milligram. And 1 day intake of cholesterol is maximum 300 milligram. So I generally advise only one whole egg and maybe an egg white along with that. Okay, so that is how it goes. Okay. Secondly, even if they don't have any issues, and you tell them If diabetic people, then they can take 2 eggs. Then we give whole egg only 3 to 4 times a week. Then we don't give it, really every day. And 3 to 4 times in a week. Yes. Okay, And even ma'am, if they don't have any complication, you allow them, then later they will come and blame you कि आपने बोला था खा लो इसलिए मेरा cholesterol बढ़ गया. So that is the problem. Okay. So basically what you have to cut down is trans fats. It means all ready-made, ready-to-eat foods, all junk foods. These have trans fats. Noodles, chow mein, burgers. This you have to cut down. And you all know that cholesterol means saturated fat को कम करना है. And sodium, because this we don't check. हम फैट कम कर देते हैं, कैलोरी कम कर देते हैं, कभी सॉल्ट के बारे में नहीं पूछते. Why can anybody tell me why we have to cut down sodium in a weight loss diet? it retains water, ma'am. Very good. So it causes lot of water retention, which causes a problem in weight loss, because we generally work on the water only. 2-3 kg पानी से ही हम लोग इधर उधर करते रहेंगे, क्योंकि कभी water retention होगा, कभी नहीं होगा. So to remove this problem of water retention, we tell them to take salt also in in level. It means 5 to 6 gram in a day. And added sugars ko bhi we have to cut down. Okay, we cannot see all food are giving us sugars only. Roti also will give us glucose. We take chapati, rice, anything. Then we have to tell them at least don't take extra sugar, don't take mithai, don't take bakery item, don't take sugar in tea, coffee. So these things you have to cut down. So most of the Ma'am, can we use stevia or any fruit sugar nowadays? Yes, we like, can give them that is another. if they need an option, but then again we have to see other parameters, their kidney and all. Otherwise, in normal people, we can give. Okay. Is there any side effects also? Can be, yes, Taking stevia or... Okay. So that also in limit. That Okay. also in limit. So they always have to go as per the recommendation. Okay. So what foods, now if you ask me kitna sodium karna hai. So see,
you have to reduce the daily sodium to less than 23 milligram and further reduce it to 1500 milligram. Okay, so basically the recommended intake 2300 milligrams. That is the amount of sodium you have to give them. Okay, generally you will get it from 5 to 6 gram of salt. Then secondly, consume less than 10% of calories from saturated fatty acid. ये मैंने आप लोगों को बताया था, what are saturated fats? Your ghee, your vanaspati, okay, palm oil, these are all saturated fats. So suppose you are giving 1400 kilocalorie, saturated fat should be less than 10%. Okay, so it should be less than 10% of 1400 kilocalorie. And like I told you, someone asked me how much cholesterol. So nearly, less than 300 milligram per day of dietary cholesterol. It means there is no way that you give them 2 whole eggs. If you are giving, you just have to give 1 whole egg. So 300 milligrams is zyada cholesterol should not exceed. Okay, so trans fatty acid less. Refined grains you have to limit in the diet along with solid fats and added sugars. It means they have to make their cereals, whole cereal. So if they are using normal chapati, you have to make some modification in the chapati. If they are using polished rice, you have to tell them to have brown rice. So these are the changes you have to tell. Then coming to alcohol, it should be not more than 2 pegs, 2 drinks for men, and it should be less than 1 drink for per day for a female. So what happens? People say, "अरे मैडम हम महीने में एक बार लेते हैं," पर वो महीने में कितना ले लेते हैं? That's very important. So you have to tell them कि per day basis पे आप अपना drink को limit करो. So you have that you have to educate. And then what foods you can increase? Like आप इतना सब कुछ बोलेंगे तो patient desperate होके पूछता है मैं क्या ले सकता हूँ? So then you have to advocate that all foods need to be taken in moderate amount. कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, but क्या आराम से खा सकते हैं? That are vegetables and fruits. ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा उनको salads recommend कर सकते हैं. डार्क ग्रीन हरे पत्तेदार सब्जी जैसे सलाद पत्ता है, चाइनीज कैबेज है, ग्रीन सैलेड, ये आप उनको बोल सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट एक टाइम का खाना वो होल ग्रेन कर ले. एक टाइम अगर वो चपाती लेते हैं और दूसरे टाइम राइस लेते हैं, टेल देम if they can try it with millet, or if they can try it with brown rice, black rice, so many rice are there. Okay, so that they can change. वो नहीं चेंज कर पा रहे तो चपाती का आटा चेंज कर दीजिए. So this is how you can educate them. And अगर वो whole milk लेते हैं, so then you have to educate them that change your whole milk to low fat milk, because north के belt में लोग बहुत दूध लेते हैं. Those who are vegetarian सोच के कि दूध milk is a complete food, but you get lot of fat also from milk. So you have to educate them that please change your fat content of the milk. But ज्यादातर लोग ये सुन के खुश नहीं होते हैं. That's my opinion. तो वो पानी जैसा होता है, they will tell. So you have to educate them कि वो पानी जैसे इसीलिए उसमें फैट हट गया है पर प्रोटीन नहीं हटा है. All right. So replace the protein foods higher in solid fats with lean fats. So I think all of you know high fat वाला कौन सा होता है? Red meat is high in fat. तो उसकी जगह आप उसको फिश या चिकन से रिप्लेस करोगे. ऑयल्स को आप कोल्ड प्रेस या बेसिकली रिफाइंड और मोनो अनसैचुरेटेड से रिप्लेस करोगे. सॉलिड फैट्स बिल्कुल खाने में कम कर देंगे. So that is how you plan the diet. Okay, so that is about diet. Before we go for plan, because क्या है मैं आप लोगों को एक एक assignment दूंगी. Generally to plan a diet, just to see कि आप क्या चीजें include करते हो diet में. That's very important. ठीक है, so based on that we will have a case study class. Okay, maybe next class. So I want you to know कि आपको खाने में अगर मेन्यू प्लान
कैलोरीज तो चलिए मैंने बता दिया, आपने आरडीए देखा, उससे 500 कैलोरी माइनस कर दिया तो स्टार्ट। पर अब आपको यही नहीं पता है कि देना क्या है। ओके, तो कई लोग जानते हैं कि हमें हाई प्रोटीन देना है, 2 अंडा दे देंगे, चिकन, कौन सा पीस ऑफ चिकन, यू नो ब्रेस्ट चिकन इज बेटर। तो दीज थिंग्स यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। कितने ग्राम, लोग आपसे पूछेंगे ये सब आके, बिकॉज दे विल गूगल सर्च एंड देन कम टू यू। सो डोंट थिंक दैट द क्लाइंट इज नॉट एजुकेटेड इनफ, दे नो ऑल। वो आपसे पूछेंगे मुझे कितना तेल सारे दिन में लेना है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू नो, कितना नमक लेना है। सो आई वांट यू टू रिवाइज बिफोर हैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, देन कमिंग टू यू नो 250 कैलोरीज मैंने आपको बता दिया, आप कैसे कम करोगे। आप यू नो स्वीट डिश बंद करोगे, एक्स्ट्रा शुगर बंद कर देंगे, वेजिटेबल ज्यादा कर देंगे, रोटी एक कम कर देंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस। नाउ कम्स फिजिकल एक्टिविटी में क्या बोलेंगे। ओके, सो इफ यू हैव टू यू नो रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, यानी आपके पास कोई डायबिटिक आया है जिसका वेट ज्यादा नहीं और वो पूछता है कि मुझे कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। So minimum it has to be 30 minutes of moderate intensity activity. Okay, that is what you advise for a diabetic or any person with chronic disease, hypertension. लेकिन अब कोई आपके पास वेट यू नो मैनेजमेंट के लिए आ रहा है और मैंने देखा उनको भी लोग यही बोलते हैं कि 30 मिनट कर लो, 40 मिनट कर लो। तो बेसिकली यू हैव टू टेल देम दैट यू नो it is 60 minutes of moderate to vigorous intensity activity. मतलब वो हवा में ऐसे ही टहल के आ जाएंगे तो वेट लूज नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू नो मॉडरेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंस विगरस फिजिकल एक्टिविटी। तो किसी को अगर अपना वेट लूज करना है तो उसको मिनिमम 1 घंटा मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी करना होगा, नहीं तो फिर वो कैलोरी इंटेक नहीं कम होगा। ओके, और Ma'am, is there any maximum limit also? Like minimum we should practice 30 minutes. So is there any like I maximum told you limit again, also? see, understand, minimum 30 minutes is only for chronic people with chronic disease. If a person with chronic disease and weight problem is coming to you, then it has to be minimum 60 minutes. And maximum, you know. No, ma'am, I want to know about maximum limit, like what calorie intake we are taking. Again, we are like our workouts should be in balance, right? Otherwise, maybe muscle drain Yeah, out but then you will be can there. always I divide want to these just 60 know. minutes. Nobody told you that it has to be at a stretch. So you can always divide, you can make it 90 minutes also, but you can divide the activity like you are dividing the calories. Okay, I'm not telling you that just don't give calorie in breakfast, lunch de do, dinner de do. Similarly, it's not important that you give them that kind of exercise only once in a day. So you can you know divide it, and I have seen it always works better when you divide it. And yes, those people who have lack time, for them it is one time only. But if you divide it, the effect on BMR is even better. Okay, and see, the limit you know depends on many things. So basically we do these things I cannot tell you here, but I think all of you know we do a BCA measurement. Okay, so that's the biochemistry what we check, जिसमें आपका BMR भी आ जाता है. इट्स अ मशीन जिसपे आप चढ़ते हो एंड एवरीथिंग कम्स, तो उसमें आपका BMR भी आ जाता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट. So depending on that, we actually, you know, decide on the physical activity. But to start with, and you want to lose weight, कभी नहीं किया है, we start with 30 to 45 minutes. और आप कर रहे हो फिर भी weight lose नहीं हो रहा, तो वो we go till 60 to 90 minutes. So I don't think in 30 minutes of exercise, you know, anybody can lose weight nearly 10 kgs or whatever. It has to be more than that. So like I told you, you can you know calculate the calories. So this is, you can see the calorie burnout table. So you can keep the this list, okay, and you can see that you know अगर bicycling किया, cycling किया या jogging किया तो nearly कितना calorie burn हो जाएगा मेरा. Okay, similarly I have a Indian chart also, which snapshot में I'll try to share it with you. So it's very easy for you. आप एक्टिविटी देखेंगे, जैसे कोई टेनिस प्लेयर आया आपके पास, थोड़ा 5 kg बढ़ गया लॉकडाउन में, तो आप कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे? तो यू कैन इजीली सी द एक्टिविटी चार्ट
उसमें लिखा होगा टेनिस 30 मिनट 60 मिनट, ही आपको ऑनलाइन में मिल जाता है एक्टिविटी कैलकुलेटर, और उससे आप देख लेते हैं हाँ अगर इतना है तो 400 किलो कैलोरी होता है। तो लाइक रनिंग, अगर कोई 30 मिनट्स रनिंग करता है 300 कैलोरी लाइक वी नो होता है लगभग 250 to 300 किलो कैलोरी, तो आप उसको वो लिख देंगे। और अब आपको पास कोई आता है नहीं भाई मैं तो सिर्फ वॉक ही करूंगा, तो आप उसकी कैलोरीज देख लेंगे और वो डिडक्ट कर देंगे। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू कैलकुलेट डाइट एंड एक्सरसाइज पैटर्न बोथ। Okay, and few parameters are there when you really need to check with the specialist, that how much exercise, like someone was asking me now, that how much exercise I can do. So people with cardiac history, जिनका कभी heart attack हो चुका है, you have to give them very mild exercise 30 minutes. If you are going for more, अगर वो weight loss program में भी आते हैं तो आप उनके specialist से ही सलाह लेके एक weight loss plan मतलब प्लान करेंगे। ओके, सिमिलरली किसी का बीपी का प्रॉब्लम है, किसी का कोलेस्ट्रॉल है, किसी का आर्थराइटिस है, डायबिटिक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इन कंजंक्शन विद द स्पेशलिस्ट। क्योंकि देखिए जस्ट एक सिंपल एग्जांपल आई वांट टू आस्क यू, एक डायबिटिक पेशेंट आपके पास आता है, योगा हैज टू बी एम्प्टी स्टमक, राइट? आप में से कोई एक मुझे जवाब दीजिए कि आप डायबिटिक पेशेंट को सुबह योगा करने के लिए कुछ खा के आने को बोलते हैं कि नहीं बोलते? एनीवन कैन टेल मी? नहीं ना? So because 30-45 minutes before yoga you cannot have anything, right? Yes. But अगर उस डायबिटिक पेशेंट का 250 से ज्यादा शुगर चल रहा है and he is coming to you, he can have a severe problem. So if there is, और उसका 70 से नीचे रात को हुआ है, 80 से नीचे, और वो आपके पास एक्सरसाइज के लिए आ रहा है, that person can die also because of hypoglycemia. This had happened once in our clinic. So we from the next it was in our hospital, so we started checking the parameters and then only allow them to do anything. तो इन लोगों पे ना आपको बहुत क्लोजली वर्क करना है, डायबिटिक पेशेंट्स पे, बीपी पेशेंट्स पे, कोलेस्ट्रॉल जिनका ज्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी जिनको बोन्स वीक है, उनका तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो क्या देना होता होगा, एस्थमेटिक पेशेंट्स में, और सबसे इम्पोर्टेंटली डायबिटिक पेशेंट्स। So you always have to tell them to check their parameters before they start with yoga or anything. क्योंकि कई बार रात को नहीं खाया, स्किप कर दिया और सुबह आके योगा कर रहे हैं तो फिर तो they will go into hypoglycemia. कई बार ऐसा भी हुआ, लोग हमारे उसमें मतलब हॉस्पिटल में we had a yoga center also. योगा सेंटर से निकले हैं और आगे बाहर जाके बेहोश हो गए। So these things you have to really work on, ठीक है? And I think all of you know कि pregnancy में और कुछ muscle injury में it has to be under the guidance of a specialist. Okay, so this is what today I have told you about the weight loss diet. Tomorrow we will be calculating. Tomorrow please check your RDA tables. Okay, check your RDA tables, otherwise I will tell you a shortcut method also of calculation. Just a second, let me ये video on कर दे। हाँ जी, तो आज मैंने आपको ये बताया है कि हम क्या क्या इंक्लूड करें, ठीक है? So tomorrow we will take a case study और फिर आप लोग सब उसका डाइट प्लान करेंगे। And I don't see anybody actually sends me any mail. So best is that we discuss here, all those who are keenly interested in knowing, we can discuss it here. Okay, how to calculate the calories. So today what I am telling you, please go back, check your RDA table, okay, and just tell me that if you deduct 500 kilocalorie, how much is the RDA coming for a man and a woman? This is only this much is something which I am giving you so that you really know how to calculate. Otherwise I'll give you a shortcut method जो मैं आपको बता रही हूँ, आप घर पे कैलकुलेट करके देख लेना। एक ओबीस पेशेंट के लिए we go to 20 किलो कैलोरी पर kg per day.
सबसे इजी मेथड है, 20 किलो कैलोरी पर केजी पर डे. तो सपोज इफ माय आइडियल वेट इज 50, मेरा आइडियल वेट 50 केजी है, तो मैं 50 इंटू 20,000 किलो कैलोरी ही दूंगी एक ओबीस पेशेंट, चाहे वो कितने भी केजी का हो, चाहे वो 90 केजी का क्यों ना हो. आइडियल वेट अगर 50 केजी है तो मैं उसको 1000 किलो कैलोरी ही दूंगी. ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन गो. वन इज अ वेरी इन डीप मेथड, जो मैं आपको आरडीए वाला बोल रही हूँ, वो बिल्कुल करेक्ट मेथड है. ठीक है, आरडीए कैलकुलेट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी का कैलोरी कैलकुलेट करेंगे, पर वो बहुत ही इन डेप्थ मेथड है, और ये सबसे इजी और क्विकेस्ट मेथड है विच आई एम टेलिंग. So that is how you have to go for calculating calories. Are you having any doubt in this? मैम मुझे पूछना था कि जैसे कोई बोलता है कि 3 टाइम ही खाना खाना चाहिए, बीच में बार बार नहीं खाना चाहिए, और कोई बोलता है कि 2-2 घंटे में खाना चाहिए तो अच्छा है, तो दोनों में से एक्चुअली कौन सा राइट वे है? दोनों ही है. मतलब आप 6 मील्स भी ले सकते हो 3-3 घंटे में, और आप 2 मील स्किप करके सिर्फ 2 मील और एक मिड मील भी ले सकते हो. डिपेंड करता है आप कौन सी तरह की फास्टिंग प्रोग्राम दे रहे हो. सबसे बेस्ट है एक बैलेंस डाइट दीजिए, जो जिसका मैं कल आपको सैंपल दिखाऊंगी, और सारा दिन इंसान नॉर्मली खा सकता है. बट कुछ लोग बहुत जल्दी वेट लॉस मांगते हैं और वो हल्का मील नहीं खा पाते, उनकी प्रॉब्लम ये है, और उनका वेट बहुत ज्यादा होता है. अभी कोई 120 केजी का आके आपके पास खड़ा हो जाए, जिसको आपको 70 केजी का करना है, तो ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा. उनके में बहुत सीवियर किलो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, तो हम फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जाते हैं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे आप पूछिए, तो मैंने एक पेशेंट को छोड़ के अभी आज तक किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग. ठीक है, क्योंकि आपको उसके सारे ब्लड टेस्ट आपके पास होने चाहिए. वो प्री डायबिटिक तो नहीं है, उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की तो नहीं है. बहुत चीजें देख के इंटरमिटेंट फास्टिंग देते हैं, यानी कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दो या डिनर स्किप कर दो, और बहुत देर का गैप रखो. तो वो मेथड मैं कल आपको दिखाऊंगी. फर्स्ट आई वांटेड यू टू एसिमुलेट कि आपको कितना पर्सन क्या लेना है. तो आज प्लीज जाइए और घर जाके, मतलब व्हेन यू रीड द स्लाइड, आप मुझे कल इतना जरूर कैलकुलेट करके बताएंगे कितना मैं कार्बोहाइड्रेट दूंगी, कितना मैं सैचुरेटेड फैट दूंगी, ओके 10% जैसे मैंने आपको बोला, कितना मैं कोलेस्ट्रॉल दूंगी, तभी तो एक प्लान बनेगा ना. तो दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रिवाइज. ओके So the plan will be for how many kgs overweight? कितने, मतलब how for what we'll make a plan for how many kgs overweight if the person is? see, I'll just show you a case study. आप उसको 1200-1400 किलो कैलोरी किसी भी किलो कैलोरी का दे सकते हैं. That's not a trouble. Once you learn one plan, you can make many plans. That's not a problem. Okay. So that's about weight loss diet. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. हाँ, और मुझे ये समझ में आया कि मतलब प्लान कैसे देना है, मतलब पैटर्न क्या है, लेकिन कितने कैलोरीज देने हैं वो कैलकुलेट करने का वो समझ में नहीं आया मैम. तो आपने आरडीए पढ़ा? सच बताइए मुझे, अभी तक की नहीं पढ़ा? नहीं मैम, प्रॉपर नहीं पढ़ा. हाँ, तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा. आप आरडीए टेबल को खोल लेते और देखते कि उसमें से सीधा 500 डिडक्ट करना है, तो आपको इजीली समझ में आ जाता. किसी का 2200 कैलोरी आरडीए था, तो बस 500 उसमें से डिडक्ट करिए. ठीक है. और अगर 10 दिन देख लीजिए, अगर उसका उससे नहीं हो रहा, तो और भी 700 कैलोरी डिडक्ट करिए. तो आपको आरडीए टेबल एक बार देखना है, वो मैं लास्ट में कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, सो दैट आपके दिमाग में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, आई थिंक द आरडीए टेबल इज नॉट देयर इन योर माइंड, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू कोरिलेट इट. तो अभी मैं आपको ये पढ़ा देने के बाद आरडीए टेबल दिखाती हूँ. ओके. So now coming to the DASH diet. So what is actually DASH diet? DASH diet is something which we give, in patients with hypertension, जिनका BP बहुत ज्यादा होता है. And इसका नाम क्या है? Dietary approaches to stop hypertension. That is known as DASH. Okay.
So I think all of you know what is blood pressure. सबको Yes. पता है blood pressure क्या है? हाँ? See, Yes, blood is already flowing through our valves and arteries. Okay. So the pressure which the blood pushes against the arteries, मतलब जिस pressure से blood आगे बढ़ रहा है, उस pressure को ही हम blood pressure बोलते हैं. And there are two phases of it. One is diastolic, one is systolic. Diast means जब heart expand करता है. Systolic means क्योंकि ऐसे लब डब heart beat करता है. The sound is लब and dub. तो जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब जब वो छोटा होता है, सिकुड़ता है और ब्लड को छानता है नीचे की तरफ, तो उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं. ये आपने अभी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा. और एक्सपैंड को डायस्टोलिक बोलते हैं. ओके. सो व्हाट इज बेसिकली हाइपरटेंशन? ये तो हो गया ब्लड प्रेशर. ओके. सो व्हाट इज हाइपरटेंशन? विच इज हाई ब्लड प्रेशर, विच इज नॉर्मल, विच इज अबव द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. So why are we so concerned with BP? एक तो ये कि ओबीस लोगों को हाइपरटेंशन होता है. हाइपरटेंशन ज्यादा दिन हो तो आपको शुगर के चांसेस होते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं. और इट हैज अ रोल विद आइज. आई थिंक आपको सबको पता है, आइज का प्रेशर ज्यादा हो तो आइज की प्रॉब्लम होती है, ग्लूकोमा होती है, ब्रेन डैमेज होता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हिमरेज हो सकता है और किडनी भी खराब हो सकता है. बहुत सालों से लोगों का जिनका बीपी होता है, आप जनरली देखिएगा उनको या तो डायबिटीज हो जाता है या तो उनको किडनी खराब. तो दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड. तो व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट? सी, बेसिकली क्यों हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर? इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड. तो जनरली हाई ब्लड प्रेशर जनरली कब होता है? जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो. तो क्या होता है? ब्लड थिक हो जाता है. और जब ब्लड थिक हो जाता है तो वो जब आर्टरी के वॉल को क्रॉस करता है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, एंड दैट कॉजेज हाइपरटेंशन. ओके. तो जनरली देयर इज मोर कोलेस्ट्रॉल, मोर ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड. तो ऑब्वियसली कोई चीज आप सोचिए, एक पाइप से आप पानी गुजारने की कोशिश करिए, वो आराम से निकलेगा. उसी पाइप में मैं घी को पुश करने की कोशिश करूं तो वो पाइप पे प्रेशर देगा कि नहीं? दैट्स व्हाई generally people have hypertension. So what kind of diet do we give in hypertension? It is known as the DASH diet, which is basically dietary approaches to stop hypertension. Basically ये diet क्या होता है? इसमें सबसे important होता है, ये US based National Heart Lung Institute ने recommend किया और हम लोग भी Indians लोग DASH diet ही देते हैं. So what is it basically? It is a diet which is low in sodium and which has got good amount of fruit, vegetable, whole grains, like जो same जो obesity में देते हैं. Okay. And lean meat देते हैं. Lean meat मतलब हम उनको बोलेंगे कि आप हफ्ते में 3 बार fish ले लो, एक बार ही सिर्फ chicken लो, red meat avoid करो, sweets avoid करो. Okay. And added fats avoid करो. So almost you can see it's the same diet what we give in obesity. So basically it has been seen, जब हम लोगों को डैश डाइट पे देते हैं तो उनका ब्लड शुगर कम हो जाता है. This diet is beneficial in heart disease, cancers, okay, diabetes, इन सब में डैश डाइट से बेनिफिट होता है. So basically हम salt कम करते हैं. So we reduce the sodium intake in the diet. Okay. So what is a standard DASH diet? You can see that basically 2300 milligram of sodium per day. That is what is recommended. Okay. अगर आपको लो सोडियम डाइट पे रहना है तो आप 1500 मिलीग्राम ऑफ सोडियम ही लेंगे एक दिन में. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये होता क्या है, ये देखिए. 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट कंटेन्स 2300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम. अब सोचिए मैंने डैश डाइट में क्या बोला? 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट कंटेन्स 2300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम. तो इसका मतलब एक बीपी पेशेंट को आप 1 टीस्पून से ज्यादा एक दिन में नहीं देंगे. Okay. If a person has got lot of say the BP is on the really on the higher side, यानी नीचे का जो है आपका वो 110 से ऊपर जा रहा है,
तब आप उनको 1500 मिलीग्राम ऑफ सोडियम में रख दें. इट मीन्स 2/3 ऑफ अ टीस्पून ऑफ टेबल सॉल्ट. छोटा टीस्पून का भी 2/3 दे देंगे टू कंट्रोल देयर ब्लड प्रेशर, और विद इन 1 वीक आप उस पर फर्क देखेंगे. सो व्हाट इज 2 ग्राम सॉल्ट मीन? जनरली हम लोग प्रैक्टिस में ऐसे ही लिखते हैं डाइटिशियंस, 2 ग्राम सॉल्ट, 4 ग्राम सॉल्ट, 8 ग्राम सॉल्ट. तो व्हाट इज 2 ग्राम मीन्स? इट मीन्स खाने में कोई नमक ही नहीं यूज हो रहा, देयर इज नो एक्स्ट्रा सॉल्ट एडेड. लेकिन फिर भी खाने की चीजों में नॉर्मल सोडियम रहता है. जैसे आपका एग योक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, these already contain lot of sodium. So we give a 2 gram salt. If somebody is written, it means no salt to be added in cooking. यानी नमक आप खाने में यूज ही नहीं करें. मैम टेस्ट कैसा आएगा? नहीं आएगा ना, पर हमें पेशेंट को ठीक करना है. Okay. Yes, So there is no option for that, any other kind of salt, Himalayan salt or pink salt or something? people are using all these seda namak and all, but we are more concerned with the sodium there. So Okay. this kind of strictness is generally done given to kidney patients. Their kidney is almost going to fail. Then we put them on such strict salt intake. Or a patient जिसमें हम देख रहे हैं कि बीपी बहुत हाई जा रहा है, सडन हेमरेज हो सकता है, उन पे हम इतना स्ट्रिक्ट सॉल्ट कंट्रोल करते हैं. जनरली किडनी पेशेंट्स पे जिनका फिल्ट्रेशन रेट बहुत खराब हो जाता है, तो नॉट नॉर्मली, नॉट वी डोंट डू इट नॉर्मली. ठीक है, बहुत बीपी बढ़ जाए या किडनी खराब हो, डायलिसिस में जाने वाला स्टेज आ गया हो, किडनी फेलियर हो सकती है, तभी वी डू ऑल दिस. देन जनरली वी गिव 4 to 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट. So 4 gram salt means a pinch of salt can be added. This is for mild cases. तो आप एक दो बार, मतलब एक इतना सोच लो कि 1 टीस्पून सॉल्ट, दैट इज 5 ग्राम, इतना ही आप लेके चलेंगे. तो ये तो बीपी के लोगों को हम बोलते हैं, बट nobody actually listens to us. And then is 8 gram salt. It means less than a teaspoon, okay, and can be added to items. It means 4 ग्राम और 8 ग्राम में हम खाने में नमक यूज करेंगे, पर 4 ग्राम में क्या करेंगे, मे बी 1-2 चुटकी में यूज करेंगे. 8 ग्राम में वही चुटकी हम 2-3 बार यूज करेंगे. सो आपकी इजी समझने के लिए द इजीएस्ट थिंग इज 1 टीस्पून ले लीजिए और सोच लीजिए कि 1 टीस्पून ही एक इंसान के लिए अलाउड सॉल्ट है, अगर उसको हाइपरटेंशन है तो. मोस्ट इजीएस्ट थिंग. इससे ज्यादा लोग मानते भी नहीं है. Just show them a teaspoon and tell them not more than this. So that is how you should go. Yes, but in kidney disease, anyhow that you will not do. वो एक ICU dietitian करती है. So just for your knowledge, I wanted to tell. ठीक है? मैम Generally लोग हाँ रिवर्सिबल है क्या? अगर हम सॉल्ट, जैसे आपने बोला कि 1 वीक में आपको फर्क दिखेगा, तो खाने लगेंगे तो फिर से बढ़ेगा क्या? ये इरिवर्सिबल चेंज होगा? बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उनको 5 से 6 ग्राम के अंदर लिमिट करने को बोलेंगे तो नहीं बढ़ेगा. ओके. तो नहीं मैम बढ़ेगा. सेंधा नमक का क्या बोला, मुझे समझा नहीं. मतलब वो अच्छा है या ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? एक्चुअली वो अच्छा है मिनरल कंटेंट के लिए, बट बीपी में इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसका सोडियम कंटेंट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है. तो लोग कहते हैं कि वो मिनरल्स ले लो क्योंकि उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है जो बीपी के लिए फायदेमंद है. बट बेसिकली एक नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहता है. तो अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे कभी नहीं देखेंगे कि फूड ट्रे में कोई डाइटिशियन सेंधा नमक रख रही. हम छोटे 5 ग्राम सॉल्ट का पैकेट ही रखेंगे क्योंकि हमारे लिए सोडियम कैलकुलेशन इजी है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप नॉर्मल सॉल्ट ले लो, या आधा खाने का सॉल्ट जो आप यूज कर रहे हो उसमें से थोड़ा आप सेंधा नमक से कर लो. पर पूरा खाना अगर आप सेंधा नमक से कर रहे हो तो उसका यही बेनिफिट है कि आपको मिनरल ज्यादा मिले. और नॉर्मल वाला सॉल्ट रिफाइंड है, पर उसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप आयोडीन नहीं ले रहे हैं, जो मैंने आपको बताया. ओके, सो अगेन आवर दिस नॉर्मल सॉल्ट इज आयोडाइज्ड, so it can cause other problem. That's why I say पूरा normal salt को पूरा बंद करना ठीक नहीं. Okay, because that is iodized. थैंक यू मैम. हाँ, okay.
So basically this dash diet is helpful for excess weight, type 2 diabetes, PCOS वालों को भी आप ये दे सकते हैं. आपके पास बहुत केसेस आएंगे पॉलिसिस्टिक ओवेरियल डिजीज वाले, तो उनको भी आप ये दे सकते हैं. ठीक है. और आप क्या बोलेंगे कि भाई आप अपना रोटी चावल कम कर लीजिए और आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा ले लीजिए. बेसिकली यही है जो आप डाइट में चेंज करते हो. ओके. तो अगर कोई बोले कि मैं कितने ग्रेन्स ले लूं, मतलब मैं ठीक है मैं रोटी खाऊं ही ना, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे यू कैन टेक 6 to 8 सर्विंग ऑफ ग्रेन्स अ डे. ओके. 1 सर्विंग मैंने आपको बताया था, जैसे एक ब्रेड वो 1 सर्विंग हो गया. आधा कटोरी आपका सीरियल, मतलब आधा कटोरी राइस या पास्ता, ये आपका एक सर्विंग हो गया. तो दिस इज व्हाट इज 1 सर्विंग. तो आप सोच लीजिए कि सारा दिन में 6 से 8 रोटी या ब्रेड या 3 रोटी और से 2 कटोरी राइस, 2 कटोरी राइस. सो दिस इज व्हाट 6 to 8 सर्विंग्स ऑफ ग्रेन्स आर. ओके. अगर बेटर है कि आप उनको 100% होल व्हीट लेने को बोले, और ये आटा आराम से बाजार में मिल जाता है, होल ग्रेन होल व्हीट आटा. ब्राउन ब्रेड लेने को बोले तो जनरली आई टोल्ड यू अनपॉलिश सीरियल्स लेने को उनको बोलना है आपको. सो दैट इज अबाउट ग्रेन्स. देन इज वेजिटेबल सर्विंग 4 to 5 सर्विंग. अब सर्विंग मैंने बताया था. कैन एनीबडी टेल मी कितना होगा ये? 4 to 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल. कितना देंगे आप उनको वेजिटेबल एवरी डे? एनीवन? 300 grams. हाँ, 300 grams या 250 grams. 300 ग्राम. हाँ, in a day. See, it is basically it will be 1 gram 500 gram, 400 to 500 gram per day. Okay. Yes, for an obese person, for diabetic patient, for the BP patients, nearly this much. ठीक है. अच्छा, 1 सर्विंग का ग्रीन लीफी वेजिटेबल का ये बोल रहे हैं कि हाफ होता है, और बट हम लोग अपने डाइट प्लान में 100 ग्राम ही लेते हैं. 100 to 70 to 100 ग्राम एक सर्विंग. ओके. तो 400 ग्राम सब्जी तो आप बोलेंगे लगभग उनको. सिमिलरली इट इज अबाउट फ्रूट्स. ओके. 4 to 5 सर्विंग देंगे, बट आप देख लेंगे कि वो प्री डायबिटिक तो नहीं है. अगर प्री डायबिटिक है तो हम 300 ग्राम में 3 सर्विंग पे खत्म कर देंगे. ओके. और ये क्यों देंगे? क्योंकि फ्रूट्स आर जनरली पैक्ड विद पोटेशियम. ठीक है. इसमें मैग्नीशियम पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, और ये मैंने आपको बताया भी था, और आपको पता भी होना चाहिए कि पोटेशियम इज वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर. इसीलिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ना बनाना शेक बहुत अच्छा रहता है, पर प्रॉब्लम की बात ये उन सबका ज्यादातर वेट ज्यादा है. तो बीपी के लिए पोटेशियम इज वेरी गुड. तो जब पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. और हम फ्रूट्स इसीलिए दे रहे हैं कि ये और वेजिटेबल्स पोटेशियम के सोर्सेज. ओके. सो along with fiber you are giving them lot of potassium also, and potassium will take care of the heart. पोटेशियम ज्यादा होना खराब है और पोटेशियम कम होना भी खराब है, लेकिन अगर पोटेशियम मैग्नीशियम कम होगा तो बीपी कम सही नहीं होगा. इसीलिए हम उनको समझा के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा देंगे खाने में. एंड फैट्स एंड ऑयल 2 to 3 सर्विंग्स अ डे. तो अब कोई मुझे बता दे कि कितना होता है 2 to 3 सर्विंग अ डे. हाउ मच इट? कितना ग्राम फैट पर डे किसी को लेना चाहिए? 10 grams, no? 15. Just wild guessing, or did you read my notes? I'm guessing. I think you have not read my PPT. Seriously, no? See, I told you that it should be not more than 30% of the calorie. मैंने आपको बोला था 20 से 25 ग्राम. और भी इजीली कैलकुलेट करना है तो आप देख लो 30% ऑफ कैलोरी. 1400 कैलोरी का 30% बताइए मुझे कितना हो रहा है. Just tell me, you can calculate and tell me how much is 30% of 1400 kilocalorie.
I'm around 28, 36, right? No, 28 plus 10. 30 into 1400 divided by 100. Around 40 calories. हाँ तो it is coming to 420. Yes. है ना? और उसको आप डिवाइडेड बाय 9 करोगे क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स हाउ मच कैलोरी? 1 ग्राम ऑफ 9 ग्राम 9 किलो कैलोरी. तो आप 9 से डिवाइड करें. ठीक है? So it will come to I think 46 or 45 gram. अब हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेट्स डोंट गो, अगर ये ओबीस पेशेंट है, मैंने आपको बोला था ये रेंज है, तो आप उसको 20% कर लीजिए, तो वो आपका आएगा 25-28 ग्राम फैट पर डे. पर लोग इससे बहुत ज्यादा लेते हैं. ठीक है, लोग इससे बहुत ज्यादा लेते हैं. तो दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फैट. And all of you know saturated fat should be lesser. अब ये जो 10% या 30% आप देख रहे हैं ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे 30% तो 46 ग्राम आ रहा है, मैम बोल रही है सिर्फ 28 ग्राम देने हैं. तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल्सो कि उसके अंडे में, उसके खाने में, उसके अगर वो दाल ले रहा है उसमें भी कुछ फैट होगा. ठीक है, तो हर एक फूड आइटम में भी कुछ फैट होता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. तो आप इतना लेके चलिए कि एक मोटे इंसान को आप 25 ग्राम से ज्यादा या 28 ग्राम से ज्यादा फैट एक दिन में नहीं देंगे, बिकॉज दैट इज विजिबल फैट. कई चीजें इनविजिबल फैट भी होती हैं, जैसे फिश में है, चिकन में है, मटन में है, एग में है, दीज आर इनविजिबल फैट, वो भी तो ऐड होगा. तो इसीलिए विजिबल फैट वी विल जस्ट कीप इट टू मैक्सिमम 20 to 28 ग्राम फॉर ओबीस पर्सन. 10 ग्राम. मैम वन डाउट. यस मैम गाय का घी जो बोलते हैं ना कि अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो ऊपर से चपाती से या राइस से एक्स्ट्रा काऊ घी डालेंगे तो वो कैसे होगा वेट लॉस में? इज इट रिक्वायर्ड और हाउ इट वर्क्स? 1 स्पून ऑफ काऊ घी. हाँ, सी एक्चुअली अभी जैसे इंटरनेट में आप देखेंगे कि लोग अचानक से बोल रहे हैं देसी घी इज वेरी गुड. So desi ghee is good, but if you start cooking your food in desi ghee, today only a patient came and from Haryana belt, some doctor told desi ghee mein khana khao, and आज बहुत ज़्यादा cholesterol बढ़ा. So genetically we have some markers in our body, and some people have strong markers for saturated fatty acid. उसी पे base करके हम लोग बोलते हैं कि saturated अच्छे नहीं. So if you have that specific marker, inflammatory marker in your genes, तो जब आप फैट लोगे आपको प्रॉब्लम होगी. इसके लिए सबसे इजी है, हम जेनेटिक टेस्ट तो हमेशा कर नहीं सकते, नहीं तो जेनेटिक डाइट भी होती है. आई डू दैट ऑल्सो, मैं डीएनए टेस्ट डाइट भी बनाती हूँ, बट नॉर्मल लोग डीएनए टेस्ट डाइट नहीं बनाते. तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप ऑन अ इजी थिंग नोट उनको बोलते हो कि थोड़ा सा आप रिफाइंड ऑयल में बना लीजिए, थोड़ा सरसों के तेल में, और थोड़ा अगर आपको ऊपर से एसेंस के लिए घी चाहिए तो यूज करें. पर एक ही तरह के तेल में आप पूरा खाना बना रहे हैं तो इट कैन नेवर हेल्प एनी. क्या वो करके देख लीजिए. सो गूगल हैज डन अ लॉट ऑफ दिस थिंग. कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी होता है क्योंकि लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, बट आप पूरा सैचुरेटेड फैट पे भरोसा करके देसी घी पे ही खाना खाएंगे तो ये जैसे रामदेव बाबा भी बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक इट हेल्प्स. आप करके देख लीजिए अपने क्लाइंट के साथ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना सही है कितना गलत. So I always feel it's the different type of oil which is always safer to tell somebody. Okay. And then you have to limit alcohol and caffeine. Caffeine again, अभी आपसे सब लोग बोलेंगे कॉफी क्यों, ब्लैक कॉफी तो बहुत अच्छी होती है. तो ब्लैक कॉफी भी सबको सूट नहीं करती है और लोगों में बहुत ज्यादा वेट का इशू होता है. ठीक है, तो वो भी आप 2 दिन वेट लॉस डाइट बहुत लॉन्ग टर्म डाइट होता है, तो आप उनको 10 दिन रोक के देखेंगे मतलब 15 दिन रोक के देखेंगे कि उनका कैसे चल रहा है, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, बिकॉज कैफीन इज अगेन वन इशू विद पीपल विद वेट एंड विद बीपी. बीपी में तो आप बिल्कुल कैफीन मना कर देंगे. सो इफ दे आर टेकिंग लॉट ऑफ कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कॉफी, यू हैव टू टेल देम नो, नहीं तो बीपी नहीं उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा. So that's about caffeine. Alcohol I told you. चाय में भी होता है क्या मैम?
चाय में not that content, not that much. तो चाय अगर वो green tea लेते हैं, it's very good. अगर वो normal black tea भी लेते हैं, तो it has other flavonols and all, which has antioxidant. But not coffee for BP patients. Specifically, night time they take, and that's the time they should not be taking. Okay. And alcohol, I told you, limit the alcohol intake. So that finishes your dash diet. 1 minute मैं आपको RDA दिखाऊंगी अभी. Ma'am, some people have the habit of every dinner and lunch, they will either have a tea or a coffee. So either a black coffee or a black tea. Is that supposed to be a digestive, or is that supposed to be? They do It's it not for good. they generally do it for weight loss. Okay. So they do it for weight loss. I think some of them have been recommended to go for it. क्योंकि कुछ बीन्स, ब्लैक कॉफी बीन्स वेट लॉस में हेल्प करते हैं, लोग ऐसा क्लेम करते हैं. तो वो बोलते हैं कि खाने के बाद खाओ. वो कुछ नहीं करता, वो बीएमआर बढ़ा देता है. तो जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो आपका थोड़ा सा कैलोरी बर्न आउट हो जाता है. बट आई थिंक एज एन एडवाइस, unless and until you are really getting some export coffee for weight loss, normally in the normal scenario you should not take. Okay. Just a second, let me find the What is export coffee? import coffee. अरे there are coffee beans no जो weight loss में help करते हैं. आपने गूगल पे सर्च किया होगा, मतलब देखा होगा कभी. So I am talking What about is Garcia Cambodia? Garcia Cambodia. Garcia Cambodia. हाँ, तो these beans claim that weight कम हो जाता है. Hardly I spoke to one of my client. Hardly 3-4 kg का फर्क पड़ता है. Hardly उसके बाद it doesn't help much. So they recommend कि वो कॉफी पियो खाने के साथ. Excuse me, ma'am. Yes. मेरे यहाँ ना किड्स योगा में एक लड़का आता है, तो वो 11 इयर्स का है और उसका जो वेट है वो 59 kg है और उसकी हाइट है 155 सेंटीमीटर. तो फिर उसका मैंने BMI देखा, तो उसको मतलब मे बी 10 kg रिड्यूस करना पड़ेगा. लेकिन बच्चों को फिर ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगे क्या? नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप सब खाने को बोलोगे, लेकिन एक बैलेंस डाइट दोगे. ओके. है ना. मैंने तो बोला ही नहीं कि ये मत खाओ वो मत खाओ. मैं तो बोल रही हूँ सब खाओ. वो तो जब बाहर क्लिनिक में जाएंगे तब वो बोलते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ. Where did you see it? I told you to restrict anything. Only thing you are going to change the thing. तो यही इसलिए तो I told you this slide you just go through, because I am just telling you to modify the things. Are you able to see the slide show? No. Just a second. So see, you are not telling them to stop anything. You are just telling them to modify things. I think there's some issue. In first slide, ma'am, maybe. Just a second. Hello. Yes. Yes. So I'm just taking a class. I'll give you a call back later. No? I think कुछ इशू हो गया. आप लोगों को स्लाइड नहीं दिख रहा है? No, ma'am. ओहो.
So this you can see the RDM. अभी देखिए आप मैन सेडेंटरी है, you know the calories are 2425. So if the person is ideal weight, ये आप सोच के चलो, तो उसका कैलोरी यू नो है 2425. ठीक है, the calorie, are you able to see? Yes, ma'am. Net energy kilocalorie is 2425. Now if you know this person is 20 kgs overweight, so what are you going to do? You have to obviously deduct from these calories only. So you can try with 500 kilocalorie deduction. So 2425 से 500 नीचे आ जाएंगे, तो कितना हो गया किलो कैलोरी? आप लगभग थोड़ा उसका एक्टिविटी पैटर्न भी कम रहेगा तो 1900. तो दिस इज हाउ यू विल डिडक्ट. अब एक लेडी है 1875 किलो कैलोरी उसका रिक्वायरमेंट है, आप उससे 500 कम कर दीजिए, कितना आ गया? एनीवन टेल मी? 1300. 1875 minus 500. 1375 minus 100 चलता है, तो you will nearly put on start on 1300 किलो कैलोरी, राइट? ओके, क्योंकि सब सेडेंटरी आएंगे, आपके पास कोई हैवी वर्कर तो आने से रहा, तो इट विल बी ओनली अ सेडेंटरी वर्कर. You will put the person on 1300 किलो कैलोरी डाइट. This is one way, बट इसमें आपको BMR कैलकुलेट करना पड़ता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट. उसके लिए क्या होता है कि यू नीड टू हैव टाइम, बिकॉज आपको उसका एक्टिविटी पैटर्न भी पता करना है, कितने देर उसने साइकिलिंग की, उसका कैलोरी डिडक्ट करना है. तो ये थोड़ा कम्बरसम मेथड हो जाता है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड मेथड. ठीक है, सो बट इतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं वेट लॉस क्लाइंट को देने के लिए. तो व्हाट वी जनरली डू इज, हम सबसे इजी मेथड करते हैं 20 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर. अब आप में से कोई मुझे अपना बॉडी वेट बताए जो आइडियल BMI वाले हैं. एनीवन कैन जस्ट टेल मी द बॉडी वेट एंड हाइट. Ma'am, 63, 5.4, 5'4" inch. So your, if I say that 63 is your ideal body weight, so 63 is your like you are more weight, or if your ideal body weight should be 50, so what I will do, I will do 50 into 20, that is 1000 kilocalorie. Depends what is your ideal weight. Ideal weight will go on your height. So please tomorrow, before we do exercise, all of you revise your BMIs, body mass index. कैसे हम ideal body weight find out करते हैं? That is very very important that you know how to calculate your ideal body weight. Let me just revise it for you, because I think you have not gone back and checked. Just a second. So you are able to see, all of you? Yes, ma'am. So this is what I wanted you to revise. Just a second. This one. So this is how you are able to understand that, what is your, you are, whether you are overweight or you are obese. So this is the BMI criteria. Okay. So first you will check the BMI of any person. So this is the example also which was given. कोई 60 kg का है जिसका height 170 centimeter है. So this is how you will calculate 170 and this 21 आ रहा है. So 21 means the person is okay weight. उसका BMI normal है. अभी ये 170 height होता और यहाँ ये 90 kgs होता, तो BMI would have been higher. तब आप क्या करते हैं, उसका ideal body weight
फाइंड आउट करते हैं। आइडियल बॉडी वेट इज हाइट माइनस 100, और ये आप चार्ट यूज कर सकते हैं गूगल पे और हर जगह, यू नो, हर हॉस्पिटल में देयर इज अ चार्ट, इतना हाइट के साथ इतना वेट इज आइडियल। तो आप उसका आइडियल बॉडी वेट देखेंगे, यानी 170 सेंटीमीटर्स वाले का अगर 90 केजीज वेट है तो उसका आइडियल बॉडी वेट 70 केजी, और आप 70 इंटू 20 कर लेंगे। द मोस्ट इजीएस्ट वे इज 70 इंटू 20 मतलब 1400 किलो कैलोरी। आप उसको 1400 किलो कैलोरी एक दिन में देंगे फॉर वेट लॉस। ये आपको और भी कल क्लियर होगा जब आप केस स्टडी करेंगे और थोड़ा पीछे जाके आप अपने स्लाइड्स देखेंगे। I was in an idea that by this time all of you know about it, ideal weight, BMI calculation, but you need to revise it before you plan a diet. Okay, so this is how you have to calculate. Anybody has any questions? Few things I would like you to go and just revise from the PPT. I have told you serving size. कल कैलोरी कैलकुलेट करने के बाद आप सर्विंग साइज खुद ही लिखेंगे, यानी कितना ग्राम आपको सब्जी देना है, कितना ग्राम फ्रूट्स देना है, ये खुद आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मैं आपको एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान 1200 किलो कैलोरी का गूगल सर्च से अपना दे सकती हूँ, बट आपकी स्पेशलिटी ये होगी कि आप सब अपने पेशेंट के लिए अलग डाइट प्लान बनाएं, क्योंकि हम लोग का अपना हर एक डाइटिशियन एक अलग डाइट प्लान देगी। कैलोरी सेम दे सकती है पर चीजें बहुत अलग होंगी। दैट्स व्हाई पीपल गो टू वेरियस डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट। सब लोग एक नहीं सिखाते हम लोग स्टैंडर्ड, वी डोंट हैव दिस मच ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज ओनली कैलोरीज जो हम स्टिक करते, वो भी चेंज होती है। कई लोग पहले 1400 किलो कैलोरी पे रखते हैं, कई लोग पहले ही 1000 किलो कैलोरी पे रख के बहुत अच्छा वेट लॉस दिखा देते हैं। सो दैट वेरीज एक्चुअली। Okay, so that maybe in the next class with example you will understand, but before that I want you to revise BMI and I want you to revise the DASH diet and how many servings of each vegetable should be there. ये भी नहीं समझ में आता, आप फर्स्ट स्लाइड में चले जाइए and just revise serving of each vegetable. जैसे मैंने आपको बोला था कि एक दिन में 500 ग्राम 400 ग्राम से 500 ग्राम सब्जी, 200 से 300 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 600 से 800 ग्राम सीरियल्स, अभी भी आप लिख सकते हो जब मैं बोल रही हूँ। ये नॉर्मल डाइट प्लान ऐसे ही चलता है, इससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। तो 600 से 800 ग्राम आपका सीरियल्स होना चाहिए। ओके, एंड 200 से 250 ml टू 600 ml तक आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होना चाहिए। यही एक नॉर्मल फूड ग्रुप वो है, डिवीजन है। तो आप इसी के आसपास चलेंगे। और वेट लॉस के लिए तो चीनी फिर देंगे ही नहीं, या एक दिन में आप 1 टीस्पून ही चीनी देंगे। फैट का भी मैंने आपको बोल दिया कि 20 to 25 ग्राम पर डे फॉर अ पर्सन, जो आपके स्लाइड्स में है ऑलरेडी मेंशन। तो इस पे बेस्ड आपको अपना एक डाइट प्लान करना है। जरूरी नहीं है कि द डाइट प्लान विच लक्ष्य और अनीता इज डूइंग द सेम अंश और सरस्वती विल बी राइटिंग, they will be writing totally different. Somebody will give oats in the breakfast, somebody can give chapati in the breakfast, both is correct, but how many serving, that's important. तो आपने 600 ग्राम अगर सोच लिया है तो सुबह आपने 100-150 ग्राम ही देना, क्योंकि सारा दिन फिर वो कवर करना है ना। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है कि ओट्स नहीं खा सकते, कि चपाती नहीं खा सकते, कि कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा सकते, वो आपकी अपनी मर्जी, आप क्या दो, हर दिन डाइट चेंज हो, पर एक्सचेंज याद रखिए कि कितना ग्राम देना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आपको फूड ग्रुप्स एक बार रिवाइज करना। ओके, सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, ma'am. So you need to revise the food groups. You please check the RDAs so that you know एक लेडी के लिए नियरली कितना RDA लगना चाहिए। ओके, ऑन एंड होल लोगों का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होता है, तो हम इतना सोच के चलते हैं कि 1800 किलो कैलोरी एक नॉर्मल लेडी को दे देंगे, 2000 किलो कैलोरी एक मेल को दे देंगे। लेकिन वेट लॉस डाइट में इससे बहुत कम जाएगा, इससे 500-600 कम ही जाएगा कैलोरी। दैट इज हाउ इट गोस।
तो आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 1800 फीमेल को देना है या 1800 किसको देना है। एक आरडी आपको पता होना चाहिए, उससे कैसे माइनस करना पता होना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो आई हैव गिवन यू द शॉर्टकट मेथड विच इज मोस्ट इजी एंड आई ऑल्सो डू इट। You just multiply it by 20 kilocalorie per kg body weight per day. Okay. So in the next class, I think things will be more clear to you. This class was about dietary guidelines. It means before planning, देना क्या है you must know और कितना देना है। प्लान करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैंने प्लान कर लिया 1400 किलो कैलोरी, अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितने फ्रूट्स दूंगी, सुबह क्या दूंगी, दिमाग में ही नहीं आ रहा। तो ये आपको डाइटरी गाइडलाइंस पता होने चाहिए, फिर आप कैलोरी कैलकुलेशन सीखते हो और फिर आप मेन्यू प्लान करते हो। दिस इज हाउ इट गोस। तो पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, फिर आप कैलकुलेशन सीखते हैं एंड देन यू मेक अ प्लान। दैट इज हाउ। यस मैम, एंड कंपलसरी हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कंपलसरी एक दिन में मतलब देना ही होता है ना? हाँ नहीं मतलब देखिए, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि जो लक्ष्य ने दिया वो अंश देंगे और वो सरस्वती देगी, जरूरी नहीं। अभी मैं ये दे रही हूँ, एक और डाइट है जो कीटो डाइट कर रही है, एक डाइटिशियन। ये सब फॉरेन से वेस्टर्न कंट्री से डाइट आ रहा है और कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब वेट लॉस दे रहा है। तो कीटो डाइट में तो आप दोगे ही नहीं, आप तो कार्बोहाइड्रेट्स पूरे मना कर दे रहे हो, पर वेट लॉस हो जाएगा। तो कुछ भी गलत नहीं है। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट इट हैज लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। कीटो डाइट में लोगों का वेट बहुत अच्छा लॉस होता है, बट आगे जाके कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है। अगर आप डाइट प्लान के फील्ड में उतर रहे हैं, बट क्लाइंट भी बहुत तरह के होंगे। कुछ लोग आपसे बिल्कुल बोलेंगे मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे कीटो डाइट दो, मैं आपके पास कीटो डाइट के लिए ही आया हूँ, तो आपको कीटो डाइट देना पड़ेगा। बट दैट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सिलेबस, बिकॉज वो हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है। वो तो आप जब प्रैक्टिस करते हो आप सीखते हो। ये मैं आपको वो सिखा रही हूँ जो बेसिक 99% केसेस में किसी हॉस्पिटल में, किसी अच्छे हेल्थ सेंटर में प्रैक्टिस किया जाता है। आप कोई अच्छे इंडिया के लीडिंग डायबिटिक सेंटर में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई ये सब कीटो वीटो डाइट नहीं देता। जो मैं बता रही हूँ वही चलता है। तो क्लिनिकल फील्ड में दिस इज द प्रैक्टिस। यही आपको मेरे टेक्स्ट बुक में मिलेगा, यही न्यूट्रिशन के टेक्स्ट बुक में मिलेगा। पर आउटसाइड द क्लिनिकल वर्ल्ड, वेट लॉस वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। वहाँ बहुत कुछ होता है, वहाँ योगा भी होता है, वहाँ लोगों का जैसे VLCC में थी, हम लोग मशीन फिट कर देते हैं और हीट से ही फैट बर्न हो जाता है ना। ज्यादा खाना भी कम नहीं करना, एक्सरसाइज भी नहीं करना, लोग टीवी देखते देखते पतले हो जाते हैं। तो एक्चुअली तो वो गलत है, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा क्या है कि योगा करो और डाइट कंट्रोल करो, पर करने वाले वो भी कर रहे हैं और उनका बिजनेस भी चल रहा है। तो देयर इज नथिंग लाइक ऐसा नहीं करा जा सकता। मैम तो डाइट रिवर्सल का जो डाइट देते हैं काफी है, हमारे पूना में एक डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी करके है, तो वो ऐसे डाइट देते हैं जो ही इज आल्सो डाइटिशियन होंगी, जो डायबिटीज रिवर्सल करके देते हैं। हाँ, वो ये एक शाह भी देती हैं, तो वो आपको पूरा वेगन हो जाने को बोलेंगी। मतलब आपको चिकन विकन दूध सब छोड़ देना है। ओके। और आपको तेल भी छोड़ देना है। मैंने उनका एक प्रोग्राम अटेंड किया था, डायबिटीज रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। आपको तेल भी छोड़ देना है। पर मैंने जो अपने WHO क्लिनिक में सीखा कि 99% लोग आपके पास फिर बैठेंगे नहीं जब तक कि वो बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस ना हो। नॉर्मल जनता में ये सब नहीं चलता है। तो उसमें भी डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, रिवर्सल नहीं होगा। मैं लोगों का 11 HbA1c से 5 करवा चुकी हूँ, रिवर्सल नहीं करवा चुकी। रिवर्सल तो तब तक होगा जब तक आप उनकी जगह पे बैठे रहे। जैसे हमारे यहाँ बहुत लोग आते थे बैंगलोर से ना, जिंदल से, आपने सुना होगा आयुर्वेदा का है, तो उनका सब रिवर्सल हो जाता है। 1-1.5 साल बाद वो फिर हो जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि वो सेम डाइट पैटर्न फॉलो करें। तो उस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो करने वाले कॉन्शियस लोग का परसेंटेज कम है। नॉर्मल लोग वही करेंगे जो वो सालों से करते हैं। तो होने को तो रिवर्सल होता है, बट फिर आपको टोटली ऑयल फ्री और फैट ये जो वेगन डाइट पे आ जाना। दूध नहीं लेंगे, मीट नहीं लेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो इनका है
एक शाह है, वो पौंडीचेरी में भी प्रैक्टिस करती है, फॉरेन क्लाइंट से हूँ। तो दैट इज ऑल्सो वन वे। वही मैं बोल रही हूँ कि अब जब आप वेट लॉस की फील्ड में उतरेंगे, बहुत तरीके हैं। मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, जो मेडिकली एक डॉक्टर आपको, हाँ बोले। मैम प्लेटो वेट प्लेटो लेवल आता है और उसके बाद फिर कम नहीं होता है, व्हाट इज प्लेटो? जो Plateau actually, it's like I told you, no, you lose 10%, and then with the same activity pattern and the same, diet, low diet, your body would adjust and you will not further decrease the weight. okay, so That's we have the to problem. change everything. Okay. We have to change everything. Okay. And क्यों ये बुक में नहीं है, I'm telling you, because मैं इतने सालों से प्रैक्टिस करके देख रही हूँ, there is no set method for it. It's all a hit and trial वाला जो मेथड है ना, वो मेथड है। और इसीलिए हम लोगों ने ये वी आर स्टडिंग डीएनए डाइट्स एंड ऑल, क्योंकि ये फील्ड बहुत वास्ट है, इसमें बहुत चैलेंज है। ये ओवरनाइट आप नहीं जान सकते इस फील्ड को। मैंने पीएचडी की है इस फील्ड में, स्टिल आई एम टेलिंग यू कि आई जस्ट नो मे बी 60% ऑफ द फील्ड। तो दैट्स व्हाई न्यू डीएनए मेटाबॉलिक डाइट कितना कुछ आ गया है। वो आपका ब्लड का पैरामीटर डीएनए टेस्ट करके बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों में प्लेट्यू जाता ही नहीं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, जो बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स चला रहे हैं हमारे वीएलसीसी या हेल्थ टोटल, वहां भी लोग स्टकअप हो जाते हैं। तो वो स्टेरॉइड दे देते हैं आयुर्वेदिक कैप्सूल में मिला के, हम तो वो नहीं कर सकते। जैसे हेल्थ टोटल में दे आर मिक्सिंग स्टेरॉइड्स फॉर वेट लॉस, एवरीबडी नोज दैट, पेपर में भी आया है। बट आई एम टीचिंग यू व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक। मैं आपको टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दे दूंगी, जो हम लोग डाइटिशियंस लोग पढ़ते हैं। तो आप वो देखिए कि दैट्स द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अगर आप एक डॉक्टर के पास भी जाएंगे और वो बोलेंगे कि मैंने ये किया, तो मानेंगे। पर ये जो कीटो डाइट है और ये जो पैलियो डाइट है, बहुत तरह के डाइट्स आए हैं आजकल, एग डाइट है, ये किसी मेडिकल बुक में, साइंस की बुक में नहीं मिले। ये तो सब गूगल सर्च मिलेगा और सब वेस्टर्न डाइट। हमारे इंडियन टेक्स्ट बुक में न्यूट्रिशन की ये सब नहीं लिखा है, क्योंकि दिस इज ऑल हिट एंड ट्राई। मेटाबॉलिज्म रेट कम हो तो भी वेट बढ़ता है, तो हम वो कैसे बढ़ा सकते हैं फिर? विटामिन डी मेटाबॉलिज्म रेट, हाँ, वो कम हो तो भी बोलते हैं कि वेट गेन होता है, तो फिर वो एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू मैम। एक्सरसाइज मैडम वो मेटाबॉलिज्म जो को बढ़ाने का बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है यू स्टार्ट एक्सरसाइज एंड गो अबव योर हार्ट रेट। वो जो प्लेट्यू के वजह से हमें डाइट भी एवरी वीक चेंज कर, एवरी वीक या एवरी मंथ ऐसे कुछ समय के बाद चेंज करना है। तो वैसे फ्रिक्शन हमें एक्सरसाइजेस में, बॉडी मूवमेंट में भी लाना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी ट्रेनर्स हैं, उनको अपनी रिपीटेशंस और अपनी इंटेंसिटी चेंज करनी रहनी पड़ती होती है। जैसे मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ाती हूँ, तो उनकी रिपीटेशंस और वो हमेशा चेंज होते हैं, नहीं तो बॉडी इसको अडेप्ट हो जाती है। और अडेप्ट हो जाती है तो इसीलिए हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे जाते हैं। वैसे ही आपको अपनी योगा के पोस्चर्स भी चेंज करने। तो ये तो आप जानेंगे कि योगा में कुछ बेसलाइन एक्सरसाइजेस होती हैं, कोई इंटेंस होती हैं। तो आपको जब वो प्लेट्यू हिट होता है, तो डाइट के साथ वो एक्सरसाइजेस भी इंटेंस करनी होगी। नहीं तो बीएमआर हल्का पड़ा रहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। कितना खाना कम कर देंगे? इंसान सरवाइव तो करेगा ही ना। भले एक रोटी दे दें आप उसको, 1000 किलो कैलोरी डाइट में है, एक रोटी होती है, तो तीनों टाइम आप एक रोटी से कम क्या दो, है ना? देन यू नीड टू चेंज योर एक्सरसाइज ऑल्सो। सो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। तभी मैं बोल रही हूँ कि वेट लॉस सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, उसमें नींद होती है, उसमें पानी होता है, उसमें आपका स्ट्रेस होता है, उसमें आपका कैलोरी होता है, और उसमें आपका एक्सरसाइज। 5 से 6 kg आराम से कम हो जाता है, सिर्फ डाइट से हो जाएगा, थोड़ा योगा करे हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें 7 kg के ऊपर जाना। देन यू नीड टू वर्क ऑन एवरीथिंग, नॉट ओनली कैलोरी एंड नॉट ओनली योगा, इट इज मेनी थिंग्स देन यू हैव टू वर्क। मैडम आज आपने बताया कि बिहेवियर में भी दैट इज आल्सो अनदर फैक्टर फॉर
to bring any change to our weight, वो कैसे? वो कांस्टेंट काउंसलिंग, इसीलिए हमारा जो लाइफस्टाइल क्लिनिक का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आई एम वर्किंग तो उसमें हम लोगों ने काउंसलर भी रखी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको वेट का प्रॉब्लम होता है वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, जो 110 केजी और 120 केजी के होते हैं। जो बेचारे 10 केजी जिनका बढ़ चुका होता है वो उस तरह के क्लाइंट्स नहीं होते। ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जो 30-30, 50-50, 40-40 केजी ज्यादा लेके चल रहे हैं। दे आर वेरी हेडस्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स, तो उनका काउंसलिंग भी करना पड़ता है। तो आपको बात करना है उनसे, थोड़ा फेमिलियर होना है। तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। सिर्फ एक चार्ट देने से, मैं बता तो रही हूँ, एक चार्ट जो हम लोगों ने इतने साल की पढ़ाई में चार्ट्स और वो बेसिक्स पढ़े, दैट इज जस्ट 40% ऑफ द वेट लॉस या एनीथिंग। जैसे आप योगा ट्रेनर हैं, कुछ लोग इंडिया के फेमस हैं, कुछ लोग अपने गली में फेमस है, कुछ लोग को लोग नहीं जानते। दिस ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड सर्विस। Similarly is weight loss. It's also same commercially, but scientifically what course I am teaching, that is which is taught to us in MSc also. उससे अलग कुछ भी नहीं है। आप MSc की बुक्स देख लीजिए, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा कोई कीटो डाइट, वीटो डाइट, ये सब हम पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि ये सेफ नहीं है। I think that's enough. So please go back to the slide, first slide, or the slide of basic nutrition. Revise the servings, and then the next class you will learn about the diet chart calculation part, planning. So BMI आपको पता होना चाहिए, serving sizes का. Okay? And next class on the Thursday, right? Yes, next class. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Take care, all of you.